Good morning to all. Welcome to Suresh Gyanbihar University. Today we are going to study organization structure. Okay. अब इसके अंदर क्या आएगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है. ओके. Usually every software development organization handles several projects at any time. Software organizations assign different teams of engineers to handle different software projects. Each type of organization structure has its own advantages and disadvantages. So the issue, how is the organization as a whole structured, must be taken into consideration so that each software project can be finished before its deadline. अब इसके अंदर यही बोल रहा है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका वर्किंग अपना अपना और स्ट्रक्चर होता है कि कब किस प्रोजेक्ट को किस तरह से हैंडल करना है. ठीक है. तो उसी के बेसिस पर है कि फंक्शनल फॉर्मेट वर्सेस प्रोजेक्ट फॉर्मेट. ठीक है. अब इसमें क्या आएगा. Functional, there are essentially two broad ways in which a software development organization can be structured. First is functional format and second is project format. In the project format, the project development staffs are divided based on the project for which they work. Okay. In the functional format, the development staffs are divided based on the functional group to which they belong. ठीक है. प्रोजेक्ट फॉर्मेट के अंदर तो क्या होगा कि प्रोजेक्ट में वो वर्क के बेसिस पे डिवाइडेड होंगे. और अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल फॉर्मेट की बात करें, तो वो लोग अपने जिस भी फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पर वर्किंग होगी. ठीक है. द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बोरो इंजीनियर्स फ्रॉम द रिक्वायर्ड फंक्शनल ग्रुप्स फॉर स्पेसिफिक फेजेस to be undertaken in the project and return them to the functional group upon the completion of the phase. ठीक है. किस तरह से देख लेते हैं. प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का है ये एग्जांपल. टॉप मैनेजमेंट प्रोजेक्ट टीम 1 2 3 अप टू एंड कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ अवर प्रोजेक्ट. ठीक है. ये हो गया आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये हो गया आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. क्या है. सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट, देन फंक्शनल ग्रुप्स. जितने भी ग्रुप्स है उनके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट टीम्स बनाई जाती है और उन टीम्स में वर्कर्स को या प्रोजेक्ट टीम को बनाया जाता है. ओके. मतलब फेजेस, अलग अलग फेजेस के लिए अलग अलग टीम्स होती है और अलग अलग टीम मेंबर्स होते हैं. In the functional format, different teams of programmers perform different phases of a project. पढ़ने से पहले आप एक बार ये दोनों डायग्राम्स बना लीजिए. सबसे पहले प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन.
ठीक है, चलते हैं आगे। The functional format, different teams of programmers perform different phases of the project. ठीक है, ये हमको समझ में आ ही गया कि फंक्शनल फॉर्मेट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं जो कि अपना allotted work fulfill करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल one team might do the requirements specification, another do the design, and so on. The partially completed product passes from one team to another as the project evolves. Therefore, the functional format requires considerable communication among the different teams because the work of one team must be clearly understood by the subsequent teams working on the project. This requires good quality documentation to be produced after every activity. इन द प्रोजेक्ट फॉर्मेट, अब ये तो क्या था, फंक्शनल फॉर्मेट का था। फंक्शनल फॉर्मेट में हर फेज के लिए हर एक अलग से टीम जो कि अपना अपना वर्क करके अगले फेज को अवेलेबल कराएगी। लेकिन अब इन प्रोजेक्ट फॉर्मेट में क्या होगा, प्रोजेक्ट फॉर्मेट में a set of engineers is assigned to the project at the start of the project and they remain with the project till the completion of the project. Thus, the same team carries out all of the life cycle activities. ठीक है, obviously the functional format requires more communication among teams than the project format because one team must understand the work done by the previous teams. ठीक है, अब दोनों में क्या हुआ, प्रोजेक्ट टीम के अंदर जितने भी इंजीनियर्स या टीम मेंबर्स हैं वो सारे फिक्स्ड रहेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा अनटिल अनलेस कोई टीम मेंबर छोड़ के नहीं जा रहा है वहां से या उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है। अदरवाइज उस कंप्लीट प्रोजेक्ट को वो ही फिक्स्ड मेंबर्स ही डेवलप करेंगे। तो इससे क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट तो ये होगा कि अगर अलग अलग टीम मेंबर्स रहेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट टीम्स बनाई जाएंगी, तो वो जो प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है वो जल्दी डेवलप हो जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या रहेगा कि जैसे एक फेज की प्रोजेक्ट टीम ने कोई भी अपना आउटपुट दिया दूसरी टीम के लिए एज एन इनपुट, तो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, साथ ही साथ मेंबर्स भी ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन की ज्यादा नीड रहेगी, समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फॉल हुआ। तो अब इसमें भी यही है, even though greater communication among the team members may appear as an avoidable overhead, the functional format has many advantages. The main advantage of a functional organization are ease of staffing, ठीक है, production of good quality documents, job specialization, efficient handling of the problems associated with the manpower turnover। ठीक है भाई, अब मैन पावर ज्यादा होगा तो एफिशिएंटली हैंडल होगा और फास्टली हैंडल होगी कोई भी प्रॉब्लम अगर जनरेट होती है तो। ठीक है, जॉब स्पेशलाइजेशन मतलब क्या होगा, अब जैसे भाई अलग अलग फेज के लिए प्रोजेक्ट मेंबर्स अलग अलग, प्रोजेक्ट टीम अलग अलग होगी, तो वो जो टीम होगी वो अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज होगी। ठीक है, ये इसके बेसिक फंक्शनल और सिस्टम के एडवांटेजेस हो गए। The functional organization allows the engineers to become specialists in particular roles. For example, requirement analysis, design, coding, testing, maintenance, etc. They perform these roles again and again for different projects and develop deep insights in their work. अब क्या समझ में आया इससे, ये समझ में आता है वही जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस वेरियस फेजेस के लिए वेरियस वेरियस प्रोजेक्ट टीम्स होंगी। वो प्रोजेक्ट टीम्स के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट होंगे, स्पेशलाइजेशन को कैरी करेंगे कि मतलब उन्हें अपने फील्ड के बारे में डीप नॉलेज होगी। ठीक है, डीप नॉलेज होगी तो अपने वर्क को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, एफिशिएंटली कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब जो भी वर्क टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अगर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ही वर्क करते हैं
तो वो वेरियस प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे, ठीक है, बार बार अपने वर्किंग को रिपीट करेंगे, तो वो क्या हो जाता है, अपने वर्क में एक्सपर्ट हो जाते हैं। ओके, डीप नॉलेज उनको हो जाती है। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन more attention being paid to proper documentation at the end of the phase because of the greater need for clear communication as between teams doing different phases. The functional organization also provides an efficient solution to the staffing problem. ठीक है, अब क्या हुआ इसका, जैसे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम चल रहा है उसकी बात करें, तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे कंसंट्रेशन की जरूरत होगी, क्योंकि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट टीम मेंबर्स को क्या एज एन आउटपुट देंगे, या वो क्या एज एन इनपुट यूज में लेगा, उसे समझाने में प्रॉब्लम होगी, उसे अपना वर्किंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो उनको प्रॉपर वर्किंग समझाने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ओके, इसकी वजह से स्टाफिंग प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन एक बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाता है। किस तरह से स्टाफिंग प्रॉब्लम, मतलब भाई हर एक प्रोजेक्ट के किसी भी प्रोजेक्ट के हर एक फेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। The project staffing problem is eased significantly because personnel can be brought in onto a project as needed and returned to the functional group when they are no more needed. क्या मतलब हुआ इसका, कि project staffing problem is eased significantly because personnel can be brought onto a project as needed। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के लिए प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं, तो जिस टीम में जैसे जैसे बंदों की जरूरत होती है, मेंबर्स की नीड होती है, उनको बुला लिया जाता है, उनसे वर्क कर लिया जाता है, और जैसे ही उनका वर्क फिनिश हो जाता है उन्हें वापस से अपने फंक्शनल ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, दिस पॉसिबली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। Okay, a project organization structure forces the manager to take in almost a constant number of engineers for the entire duration of his project. This results in engineers idling in the initial phase of the software development and are understand tremendous pressure in the later phase of the development। अब इसका क्या मतलब हुआ, कि जब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसमें तो फिक्स्ड मेंबर्स होते हैं। भाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है, हर एक फेज के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स टीम्स होती है, लेकिन इसके अंदर तो फिक्स्ड मेंबर्स होते हैं फ्रॉम इनिशियल टू लास्ट फेज। तो जब वो लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट, तो काफी आइडियली, काफी सिर्फ ना फुल एंथू के साथ वो लोग वर्क करते हैं, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उनके ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है कि आप फटाफट अच्छे से गुड एफिशिएंसी के साथ वर्क करें। ओके, a further advantage of the functional organization is that it is more effective in handling the problem of manpower turnover. This is because engineers can be brought in from the functional pool when needed. Also, this organization mandates production of good quality documents so new engineers can quickly get used to the work already done. देखो कितना सही है इसमें, क्योंकि आपके पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपके पास यू हैव अ पूल ऑफ मेंबर्स। ओके, सो व्हेन दे आर नीडेड, you just brought members from that pool and just go through your work, needed work. Okay, and when the work is finished, the members again go to that functional pool. So uh, there is not a pressure of work on the fixed members. Okay, here also the main mandatory needed
thing that should be done is good quality documentation. Okay, we have already discussed what is good quality documentation and why is good quality documentation. This is because भाई हम ये चीज पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बताइए अब आप क्यों क्यों नीड रहेगी इसकी। इसलिए नीड रहेगी क्योंकि भाई जब दूसरे फेज के डिफरेंट अलग टीम मेंबर्स को वो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगा तो वो इजीली इस पे वर्क कर सकेंगे, उन्हें समझने में देर नहीं लगेगी। नाउ अनसूटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल फॉर्मेट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके थोड़े भाई हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसका क्या प्रॉज तो हमने देख लिया। नाउ व्हाट आर द कॉन्स फॉर द फंक्शनल organizations? In spite of several advantages of the functional organization, it is not very popular in the software industry. ठीक है, इतने एडवांटेजेस होने के बाद भी ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में पॉपुलर नहीं है। बाय the apparent paradox is not difficult to explain. The project format provides job rotation on the team members. That is, each team member takes on the role of the designer, coder, tester, etc. during the course of the project. क्या बोल रहा है ये कि जब प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि जॉब रोटेशन होती रहती है सेम टीम मेंबर्स के लिए। कि कभी तो कोडिंग का काम, जैसे सपोज 5 टीम मेंबर्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट की टीम के अंदर, ठीक है, तो उन 5 टीम मेंबर्स में ही कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, डिजाइनिंग, एनालिसिस ये सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। कभी तो जो 1 नंबर का बंदा है या मेंबर है वो डिजाइनिंग करेगा, कभी उसी मेंबर को कोडिंग दे दी जाएगी कि भाई आप अब इसका कोडिंग पार्ट करेंगे, या कभी और दूसरे प्रोजेक्ट में टेस्टिंग पार्ट दे दिया जाता है। तो इस तरह से उनके बीच में ही ये जॉब स्किल्स हैं वो साइकिल की जैसे घूमती रहती हैं, जिससे उन्हें सारी चीजों के बारे में नॉलेज रहता है। ठीक है, on the other hand, considering the present skill shortage, it would be very difficult for the functional organizations to fill in slots for some roles such as maintenance, testing, and coding groups. Okay. Also, another problem with the functional organization is that if an organization handles projects requiring knowledge of specialized domain areas, then these domains experts cannot be brought in brought in and out of the project for the different phases unless the company handles a large number of such projects. ठीक है, वही वाली चीज हो गई है कि जैसे छोटी छोटी जो कंपनीज है वो तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई वो बहुत लोगों को हायर कर सके। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे बड़ी कंपनीज में तो क्या होगा, सो मेनी प्रोजेक्ट्स एट द टाइम चलते हैं। ठीक है, ऑन एयर रहते हैं। लेकिन जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑन एयर रहेंगे एट द सेम टाइम, तो क्या होगा कि जैसे किसी प्रोजेक्ट में फर्स्ट रिक्वायरमेंट फेज चल रहा है, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट में टेस्टिंग फेज चल रहा है, किसी में डिजाइनिंग फेज चल रहा है, तो वही टीम मेंबर्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उनका प्रोजेक्ट चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर छोटे कंपनीज या छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहां पर बहुत प्रोजेक्ट्स नहीं चलेंगे, तो इतने टीम मेंबर्स फिर क्या करेंगे, वो कोई यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, for obvious reasons the functional format is not suitable for small organizations handling just 1 or 2 projects. ठीक है, आके समझ में। Now team structures. What is team structures? Team structure addresses the issue of organization of the individual project teams. ठीक है, there are some possible ways in which the individual project teams can be organized. There are mainly 3 formal team structures: chief programmer, democratic, and the mixed team organization. Team structures में basically ये बताया गया है कि
जैसे कोई भी प्रोजेक्ट टीम होती है उसको किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए, किस तरह से उनमें वर्किंग को डिवाइड किया जाए, किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। तो बेसिकली देयर आर 3 टीम स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट इज चीफ और हेड ऑफ, चीफ प्रोग्रामर, democratic and mixed team organizations. Although several other variations to these structures are possible, problems of different complexities and sizes often require different team structures for chief solution. ठीक है, अब सबसे पहले देखना है चीफ प्रोग्रामर टीम के अंदर क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजर, रिपोर्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। मतलब क्या हुआ, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर रिपोर्टिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, चीफ प्रोग्रामर। In this team organization, a senior engineer provides the technical leadership and is designated as the chief programmer. ठीक है, जो भी लीडर होता है, सीनियर इंजीनियर जो लीडर होगा उसको बोला गया है चीफ प्रोग्रामर। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स किसको रिपोर्ट करेंगे, चीफ प्रोग्रामर या सीनियर इंजीनियर को। द चीफ प्रोग्रामर partitions the task into small activities and assigns them to the team members. He also verifies and integrates the products developed by different team members. क्या मतलब हुआ, जो चीफ इंजीनियर है वो उस प्रोजेक्ट के वर्क को पहले छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करेगा और उन वेरियस मॉड्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जब सारा वर्क हो जाएगा टीम मेंबर्स के थ्रू तो उन्हें वेरीफाई करेगा और इंटीग्रेट करेगा एक सिंगल सोलो मॉड्यूल उस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम हमने देख ही लिया। देन द चीफ प्रोग्रामर प्रोवाइड्स एन अथॉरिटी and this structure is arguable more efficient than the democratic team for well understood problems. Okay, however, the chief programmer team leads to the lower team morale since team members work under the constant supervision of the chief programmer. This also inhibits their original thinking. The chief programmer team is subject to single point failure since too much responsibility and authority is assigned to the chief programmer. तो अब जब भी कोई प्रोजेक्ट फेलियर होगी या कोई भी प्रॉब्लम अगर जनरेट होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चीफ प्रोग्रामर की होगी। ठीक है, तो इसीलिए उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज होती है कि हाँ भाई वो प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क करना चाहिए, एफिशिएंटली होना चाहिए, वैलिडेटेड वेरीफाइड होना चाहिए। ओके, ये इसका डायग्राम है, चाहो तो नोट कर लो। The chief programmer team is probably the most efficient way of completing simple and small projects since the chief programmer can work out a satisfactory design and ask the programmers to code different modules of his design solution. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली completed many simple MIS projects, management information system. ठीक है, then for a similar MIS project, chief programmer team structure can be adopted.
The chief programmer team structure works well when the task is within the intellectual grasp of a single individual. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि अगर ऑलरेडी किसी एमआई इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर चुके हैं तो सेम टेक्निक या सेम वर्किंग को या सेम बंदों को जिन्होंने उस पे वर्क किया था उनको ग्रेस्प किया जा सकता है, जिससे इजीली और इंटेलेक्चुअली वो वर्क टास्क कंप्लीट हो जाएगा efficiently. However, even for simple and well understood problems, an organization must be selective in adopting the chief programmer structure. The chief programmer team structure should not be used unless the importance of early project completion outweighs other factors such as team morale, personal development, life cycle cost. Okay, next is democratic team. तीन चीजें पढ़ी थी हमने, चीफ प्रोग्रामर, ठीक है, डेमोक्रेटिक टीम। डेमोक्रेटिक टीम के अंदर क्या है देख लेते हैं एक बार डायग्राम। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं या टीम मेंबर्स जो हैं वो सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इसका, द डेमोक्रेटिक टीम स्ट्रक्चर एज द नेम इम्प्लाइज डज नॉट एनफोर्स एनी फॉर्मल टीम हिरार्की, ठीक है। इसके अंदर वही है, कोई फॉर्मल या कोई हेड नहीं होगा, सारे आपस में ही कम्युनिकेट करेंगे। Typically, a manager provides the administrative leadership at different times. Different members of the group provide technical leadership. ठीक है, the democratic organization leads to higher morale and job satisfaction. Consequently, it suffers more from less manpower turnover. Also, democratic team structure is appropriate for less understood problems since a group of engineers can invent better solution than a single individual as in a chief programmer team. ठीक है, क्या मतलब हुआ है इसके अंदर कि जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो आपस में ही अकॉर्डिंग टू टाइम और रिक्वायरमेंट या जैसे भी जिसकी भी इंटेलेक्चुअली की रिक्वायरमेंट होती है वो एज अ चीफ या लीडर वर्क करने लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, मैन पावर टर्नओवर, मतलब मैन पावर कम रहती है, ठीक है। इसके अंदर सबसे जो मेन जो इसका एक एडवांटेज है वो ये है कि इसमें सब अपने अपने फील्ड में नॉलेजेबल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं, तो इसमें बेटर सॉल्यूशंस मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कंपेयर टू चीफ प्रोग्रामर टीम, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक टीम स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग less than 5 or 6 engineers and for research oriented programs. For large sized projects, a pure democratic organization tends to become chaotic. The democratic team organization encourages egoless programming as programmers can share and review one another's work, ठीक है। आया समझ में, इसके अंदर क्या होता है, ये ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पे के लिए ठीक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फिर मेंबर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, इंजीनियर ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, केओटिक सिचुएशन आ जाएगी। केओटिक मतलब केओस सुना होगा, केओस से बना है केओटिक, मतलब कि बहुत जैसे भीड़ टाइप हो जाएगी और वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ इसमें ईगोलेस प्रोग्रामिंग होती है। वो कैसे, क्या मतलब हुआ इसका कि जितने भी प्रोग्रामर्स हैं वो अपना जो वर्क ये जो उन्होंने किया है वो उसे हाइड नहीं रखते हैं, शेयर करके चलते हैं एक दूसरे के साथ, सबको अपना वर्क दिखाते हैं जिससे कि प्रॉपर वर्क हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड कंट्रोल। मिक्स्ड कंट्रोल के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी रहेगा, सॉफ्टवेयर सीनियर इंजीनियर्स भी रहेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी रहेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने लेवल पे भी वर्क करेंगे, साथ ही साथ वो सीनियर इंजीनियर्स को भी रिपोर्ट करेंगे, सीनियर इंजीनियर्स भी आपस में रिपोर्ट करेंगे और वो प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे,
ठीक है, ये हो गया आपका मिक्स्ड टीम स्ट्रक्चर। अब मिक्स्ड कंट्रोल टीम ऑर्गेनाइजेशन हमने ये देख ही लिया। ओके, इसके बाद है ईगोलेस प्रोग्रामिंग टेक्निक, कैरेक्टर्स, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे नेक्स्ट। चलो ये और देख लेते हैं, या फिर इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आप ये डायग्राम बना लो मिक्सचर टीम स्ट्रक्चर। ठीक है, हो गया। क्या बोल रहे हैं मिक्स्ड कंट्रोल टीम ऑर्गेनाइजेशन में? द मिक्स्ड टीम ऑर्गेनाइजेशन हैज द नेम implies draws upon the ideas from the both democratic organization and the chief programmer organization। ठीक है, this team organization incorporates both hierarchical reporting and democratic setup। ठीक है, democratic setup democratic connections are shown as dashed lines and the reporting structure is shown using solid arrows। The mixed control team organization is suitable for large team sizes। ठीक है, ये बेसिकली जो मिक्स्ड टीम ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ पर, जहाँ पर लार्ज टीम्स की जरूरत होती है, लार्ज प्रोजेक्ट्स को बनाया जाता है, वहां पर इसकी नीड रहती है। The democratic arrangement at the senior engineer level is used to decompose the problem into small parts. Each democratic setup at the programmer level attempts solution to a single part. Thus, this team organization is eminently suited to handle large and complex programs. This team structure is extremely popular and is being used in many software development companies। ठीक है, ये एक तरह से काफी यूजफुल भी है। किस तरह से, जैसे भाई लार्ज टीम मेंबर्स या लार्ज टीम कंपनीज में अगर काम किया जा रहा है, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, ठीक है, पहले तो वो अपने लेवल पर ही उस कोई भी प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पूरा अपने लेवल पे ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करके, जो हमने पढ़ी इक्वलेस प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, फिर उसको जो भी आउटपुट आता है उसको सीनियर इंजीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं। सीनियर इंजीनियर्स भी आपस में एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, आफ्टर डेट जो भी उनका आउटपुट आता है उसे प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये ज्यादा यूजफुल कहाँ होगा, जहाँ पर मैनी सॉफ्टवेयर डेवलप extremely popular and being used in many software development companies। Okay, चलिए, thank you।